down? Okay. So we define inner product space. What is inner product space? So this is a linear space, or you can say vector space with the function inner product. And what is inner product? This is generalization of dot product. So then we define orthogonality. Two vectors are orthogonal if their inner product is 0. Then orthonormal, they are orthogonal plus one condition, that inner product of each element with same element, that is 1. Then we have proved an important result which says that if you have a set of orthogonal vectors and you write some another vector as a linear combination of these vectors, v equal to c1 u1 plus c2 u2 etc., then you can compute each of the coefficients ci using orthogonality. So what will be c1? This will be v inner product v with u1 divided by u1 with u1 inner product. इसको बोलते भी ऐसे inner product of u1 with u1. ठीक है. c2 निकालना है तो v का inner product आप किससे ले लो? u2 से. नीचे u2 का u2 से. और अगर ये ऑर्थो नॉर्मल हो तो फिर जो डिवाइड कर रहे हो ये फैक्टर कितना बनेगा? दिस विल बी 1. थोड़ा और इजी हो जाएगा. So now we continue Sturm Liouville problem. So in that direction, I'm proving one important identity that is known as Lagrange identity. Lagrange identity. So this important, you can say this is lemma, that will be used further to prove some results. So this this lemma says that we consider the SL problem. So now I will write short notation. So L of y. What is L of y? डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये. क्या था ये? माइनस पी वाई डैश डैश. ठीक है. डी बाई डी एक्स जो ऑपरेटर था, प्लस क्यू ऑफ वाई और इक्वल टू क्या था? लैम्डा आर वाई. पी क्यू आर दे आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड विद बाउंड्री कंडीशन. बाउंड्री कंडीशन क्या थी? अल्फा 1 वाई एट ए plus you can write beta 1 y dash at a equal to 0, and second condition similar condition at b. Okay, so this is Sturm Liouville boundary value problem. So we consider this problem. Let u and v are two functions with continuous second derivative. With continuous second derivative on interval a b, जो डोमेन है आपका. a लेफ्ट बाउंड्री है, b राइट बाउंड्री है. ठीक है. On a b, then prove that inner product of lu with v equal to inner product of u with lv. और इनर प्रोडक्ट डिफाइन कैसे हैं? कल हमने लिखा था दो फंक्शन. यू हैव ए स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस and it is defined as integral a to b fx gx and dx. There are many inner products, so this is just an example. Multiply both functions, integrate from a to b. So this is inner product. ये भी बैठे हैं कि नहीं? अच्छा बैठे हैं. बैठे. आवाज आ रही है भाई? Say something, Divya. Yes, sir.
Yes, sir. चलो आती होगी. So what you need to prove? So either you apply L on U or you apply L on V. So both are same. इनको सेल्फ एडजॉइंट भी बोलते हैं अलजेब्रा में. तो ये हमने प्रूफ करना है. एनी आइडिया ऑफ प्रूफ कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है. पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर एल पे एक्ट कर रहा है और सेकंड में आपने वी पे शिफ्ट कर देना है उसको. सो विद बाकी आप लिख लेना जो गिवन है. ठीक है. यू हैव एसएल प्रॉब्लम विद बाउंड्री कंडीशंस. यूजुअली थ्योरम में लिखते हैं ना जो दे रखे हैं. यू प्रूव मैनी थ्योरम इन अलजेब्रा में भी. थ्योरम 1.2. So we consider L of y equal to minus p with boundary condition alpha 1 y at a plus beta 1 y dash a equal to 0, alpha 2 y b plus beta 2 y dash b equal to 0. So let u and v are two continuous functions. वैसे शॉर्ट में ये भी लिखते हैं मैथ्स में. सो C2AB 2 times continuously differentiable function on interval AB. तो सेकंड डेरिवेटिव यूज होगा इनका. सेकंड ऑर्डर इक्वेशन और सेकंड डेरिवेटिव है. सो यू डोंट हैव एनी डिफिकल्टी इफ यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन अप टू सेकंड ऑर्डर. सो नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड. अब इनर प्रोडक्ट लिखा है LUV. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड इसका मीनिंग क्या है? FG Sir, A to B integration from A to B, A, A to B U dash into LU V into V. times V then dx. Everything is a function of x. Yes, sir. अब इसकी वैल्यू फिट कर दो. What will be L of U? तो ये सेपरेट है. ये माइनस ऑफ पी एक्स यू एक्स इसका डैश आएगा. ठीक है. और पूरे का डैश प्रिसाइसली दिस वी क्या है? वी ऑफ एक्स है. ठीक है. प्लस और भी कुछ आएगा. एल के अंदर क्यू भी है ना. फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्यू ऑफ एक्स यू एक्स वी एक्स डी एक्स. ठीक है. एल एक्टिंग ऑन यू तो वाई की जगह यू आ जाएगा और वी तो बार मल्टीप्लाई है ही. सो नाउ सर अप्लाई dx 2 बार इंटीग्रेशन आएगा. बाय पार्ट्स ऑन फर्स्ट. सर कैसे dx करते हैं इंटीग्रेशन बाय 2 बार पार्ट्स? लिखेंगे. पी यू डैश को फर्स्ट ले लो और उसको सेकंड फंक्शन ले लो. सॉरी डेरिवेटिव हटाना है ना. तो v को फर्स्ट फंक्शन लो दूसरे को सेकंड फंक्शन. तो क्या आएगा इंटीग्रल? इसका इंटीग्रल करोगे तो डेरिवेटिव हट जाएगा. दूसरा फंक्शन एज इट इज. ठीक है. फिर लिमिट भी लगाओगे आप a टू b. फिर माइनस साइन आता है. -1 प्लस हो जाएगा. इसके बाद क्या आएगा? पी एक्स यू डैश एक्स दूसरे का डेरिवेटिव वी डैश एक्स. ठीक है. सेकंड एज इट इज. इसको सेपरेट कर देते हैं. ए टू बी यू एक्स क्यू एक्स वी एक्स इन एनी ऑर्डर. सो यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. हम करना क्या चाह रहे हैं कि अपने u और डेरिवेटिव पहले u के साथ है ना तो शिफ्ट करना है v पे.
तभी तभी जाएगा ना वो एल वी पे जाएगा, दोनों को इंटरचेंज करना है आपस में। सो यू नीड टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 टाइम्स। ठीक है, यहां तक किसमें माइनस माइनस, हाँ माइनस वन प्लस हो जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी है ना। सो देन अगेन फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस पी एक्स यू डैश एक्स, ये लिमिट बाद में फिट करेंगे एंड में। अब फिर लगा दो सेकंड पे, इस पे आपने कैसे लगाना है इनको, अब पी और वी को अपने क्लब करना है ना, यू से हटाना है इसको, तो इनको एक फंक्शन मानो और इसको सेकंड मान लो यू डैश को, प्लस पी एक्स वी डैश एक्स एज इट इज, दूसरे का यू डैश का इंटीग्रल आ जाएगा, दैट विल बी यू ऑफ एक्स, देन लिमिट फिट करोगे, अब नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, नेगेटिव साइन ए टू बी, अब पी एक्स वी डैश एक्स इसका डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, यही चाहिए था हमें, क्योंकि ऑपरेटर के अंदर क्या है, पी जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, फिर कलेक्ट पूरे का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, और सेकंड यू डैश का इंटीग्रल आएगा तो वो यू बन जाएगा, सो यू ऑफ एक्स डी एक्स प्लस दिस इज, इसको सेम लिख देना जो लास्ट में वाली टर्म थी। अब मैं फर्स्ट दो को कलेक्ट कर रहा हूँ, पी एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सेकंड को पहले लिख देते हैं, वी डैश एक्स यू एक्स माइनस यू डैश एक्स वी एक्स ए टू बी, ठीक है जी, माइनस ए टू बी पी एक्स, इसको अब लिख ही देते हैं, बार बार क्या लिखना है, ये क्या बन जाएगा, दिस प्लस दिस, ये दोनों इकट्ठे हो क्या बन सर जाएगा, माइनस अंदर ले जाएंगे तो एल वी जो लिख आपने फर्स्ट देंगे। लाइन शुरू किया था वही है ये। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट लाइन सेम है, यू और वी का रोल इंटरचेंज हो गया, और लास्ट टर्म तो सिमेट्रिक है, इसमें तो यू वी कोई, इसमें लास्ट टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट टर्म का सेम ही बन गया, इसमें तो यू था, यू की जगह वी आ गया, तो ये लास्ट वाली टर्म क्या बन जाएगी, दैट विल बी इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद एल वी, और इसमें पूरे में लिमिट डालनी है आपने, पूरे में है ये, सॉरी ये पी में भी लिमिट डालोगे ना। अब अगर ये लिमिट जीरो बन जाए, ठीक है, अगर ये जीरो बन जाए तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, बट ये जीरो बन जाएगा बाउंड्री से, क्योंकि ये किस पे एवेल्यूट करोगे इंटीग्रल, सॉरी फंक्शन वैल्यू किस में, बी पे और ए पे, अपर लिमिट फिट करोगे बी, फिर ए फिट करोगे, माइनस करोगे, सो दिस टर्म विल वैनिश ड्यू टू बाउंड्री कंडीशन। तो उसको देख लेते हैं, सुनाओ। अब बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगी, एक लिख लेते हैं, दूसरा सिमिलर आ जाएगा। बी पे जो बनेगा, अल्फा टू लिखा है, क्या लिखा सेकंड में, अल्फा टू एक लिख लेते हैं, अल्फा टू वी बी प्लस बीटा टू वी डैश बी, ये जीरो आएगा, बी पे लिखो चाहे एक पे, एक ही बात है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे जब बी फिट करोगे तो वी डैश आएगा ना, वी डैश एट बी आएगा, तो वी डैश बी को वी बी में चेंज कर देंगे तो फिर कैंसिलेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगली टर्म में दोनों में हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यू और वी क्या है, जो वाई को, वाई की जगह है ये फंक्शन है, सोल्यूशन की जगह रिप्लेस करना है अपने। सो दिस इज बाउंड्री कंडीशन एट बी इन टर्म ऑफ बी। बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म में ये जब आप बी फिट करोगे तो ये वी डैश बी बनेगा, सो यू कैन कैलकुलेट वी डैश बी फ्रॉम हियर। so what will be v dash b, minus alpha 2 beta 2 vb, और आगे यू एक्स, ये तो यू भी बन जाएगा आज टी, फिर ये अगली वैल्यू क्या आ जाएगी, बी फिट करोगे अपर लिमिट यू डैश बी, तो अब दूसरी कंडीशन बी पे लिख लो यू में, सिमिलरली क्या बन जाएगा,
हाँ सिमिलरली लिख रहा हूँ. सो यू डैश बी विल बी सेम ही आ जाएगा, अल्फा टू बाई बीटा टू. बी की जगह यू कर दो आप, बी की जगह यू कर दो, बी पे लिखना है आपने. ठीक है. एंड सिमिलर एक्सप्रेशन फॉर, अब मैं उसको लिख नहीं रहा, हम सिमिलर एक्सप्रेशंस. जब ए फिट करोगे फिर क्या आएगा, लोअर लिमिट, तो यहाँ पे वी डैश ए आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू डैश ए. सो सिमिलर एक्सप्रेशंस फॉर वी डैश ए एंड यू डैश ए. जब फिट करेंगे फिर लिख दूंगा लास्ट में. बस अब यही हो जाएगा, अल्फा टू की जगह अल्फा वन आ जाएगा, बीटा टू की जगह बीटा वन आ जाएगा, सेम एक्सप्रेशन आ जाने. अब हम इसको एवल्यूट करते हैं, बाउंड्री टर्म जो पी एक्स वाली थी. सो नाउ माइनस ऑफ पी एक्स वी डैश एक्स यू एक्स माइनस यू डैश एक्स वी एक्स एंड लिमिट ए टू बी. सो जब बी फिट करोगे तो माइनस साइन को बाद में डाल देंगे, ये कंफ्यूज कर रहा है. जीरो बनेगा तो तुम्हारी माइनस भी जीरो बन जाना है कोई. ठीक है, इसको निकाल लेते हैं तो माइनस भी जीरो बनेगा. अगर ये है था ही नहीं, हाँ अच्छा अगली ठीक है, माइनस नहीं है. सो फर्स्ट टर्म विल बी पी बी, वैल्यू डाल दो वी डैश बी. तो लिख लेते हैं एक बार, वी डैश बी यू बी माइनस यू डैश बी वी बी फर्स्ट टर्म. फिर ए फिट करोगे नेगेटिव साइन आएगा, देन वी डैश ए यू ए माइनस यू डैश ए वी ए. ओके, now substitute values to simplify. V dash b will be minus alpha 2 by beta 2 vb ub minus u dash b minus minus plus alpha 2 of beta 2 ub. तो कैंसिल हो गए. ठीक है. Similarly here, what will be v dash a minus alpha 1 upon beta 1 v at a u a, ये प्लस हो जाएगा. what will be u dash a minus alpha 1 upon beta 1 u at a v at a. So these also cancel out. So 4 boundary term cancel, so this is 0. So hence over claim that LUV equal to VLU. और ये सिंबल क्या है, इनर प्रोडक्ट. इसका जब शॉर्ट में लिखा है, इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट फंक्शन हमारे सेंस में क्या है, फर्स्ट फंक्शन को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो फिर ए टू बी इंटीग्रल कर दो, ये मीनिंग है हमारा. तो शॉर्ट नोटेशन है, बार बार पूरा इंटीग्रल लिखें तो कई बुक्स नहीं यूज करती इसको, सीधा लिखते हैं कि, बट थोड़ा इससे सिंप्लीफाई हो जाता है लिखने का. तो एक नीचे रिमार्क, इनको भी देख लें. हाँ जी, अच्छा हाँ, ये इनको चेंज ही करना. थैंक यू. यू शुरू में तो नहीं लिख दिया मैंने ये. अच्छा, सो वन रिमार्क. So since you have inner product LU V equal to ULV, so the SL problem is also known as, is called a symmetric problem, or sometimes it is known as self-adjoint problems. You will study these inner product and self-adjoint operators in functional analysis in semester 3, but we don't require that much knowledge here. सिर्फ हमें इतना ही चाहिए कि आपके पास
क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो यू हैव ए स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस। तो कंटिन्यूस फंक्शन पे इनर प्रोडक्ट डिफाइन करना है आपने, दैट इज जनरलाइजेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। और हमारे सेंस में वो कैसे है, इनर प्रोडक्ट इंटीग्रल के सेंस में डिफाइन है। दो फंक्शन एफ और जी का इनर प्रोडक्ट क्या है, जो भी आपका डोमेन होगा ए टू बी, जो बाउंड्री होगी लोअर बाउंड्री से अपर बाउंड्री तक इंटीग्रल करना है दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करके। एंड देयर आर मैनी इनर प्रोडक्ट ऑन वन स्पेस। फंक्शन है ना, तो एक फंक्शन आप बहुत सारे डिफाइन, रियल लाइन है, कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, इनफिनिटली मैनी, बहुत सारे कर सकते हैं ना, साइन कॉस टेन जो मर्जी करते जाओ आप। तो लाइक अब ये भी फंक्शन ही है, इनर प्रोडक्ट इज आल्सो ए फंक्शन। किस पे डिफाइन है वो, वेक्टर स्पेस पे। आपका डोमेन है वो वेक्टर स्पेस है, जरूरी नहीं कि आर हो, दैट कैन बी R2 R3, दैट कैन बी एनी स्पेस। सी भी हो सकता है, सी में भी सेम सिमिलर है। सी में सिर्फ ये चेंज होता है कि अगर सी है आपके पास तो इस पे बार आ जाता है दूसरे पे। अब रियल है तो जी बार क्या होगा, जी के इक्वल होगा, हमारा वेरिएबल रियल है। क्या टाइम हो गया? ठीक है भाई, इधर जो बैठे हैं ऑनलाइन, संजय यस सर। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे को। अब ये प्रूफ बैठे हैं, ये ना बोलेंगे झूठ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। कई बार टेक्स्ट मैसेज करो, मेरी आवाज आ रही है, अब उनकी आवाज नहीं आ रही, बहुत बार ऐसा होता है ना। मेरी आ रही है? आ रही है सर। So by using Lagrange identity, now we will prove 2-3 important property of eigenvalue problem. First property is that these eigenvalues are real. पहली property है. So next theorem is, पिछले को मैंने लेमा बोला, इसको थ्योरम, क्या फर्क होता है इसमें? The eigenvalues of SL problem, लेमा एक स्पेसिफिक रिजल्ट है दैट इन थ्योरम को यूज करने, इनको प्रूव करने में यूज होगा। थ्योरम्स आर जनरल रिजल्ट और लेमा दे आर यूज्ड टू प्रूव थ्योरम्स, दे आर स्मॉल रिजल्ट। इसके सेंस में ही है लैग्रांज आइडेंटिटी। बाकी देयर आर मैनी लैग्रांज आइडेंटिटी और भी हैं, जैसे हमारे हमने पहले पढ़ा था ना, एक्जिस्टेंस यूनिकनेस में एक पढ़ी थी आइडेंटिटी, वो क्या थी, एक इनइक्वालिटी पढ़ी थी ग्राउंडवाल। तो देयर आर मैनी ग्राउंडवाल इनइक्वालिटी विद सेम नेम। द आइगन वैल्यू ऑफ एसएल प्रॉब्लम, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नोटेशन क्लियर है, ठीक है। जब एग्जाम में पूछेंगे तो दे रखा होगा कि एल वाई क्या है, ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रहा। बाउंड्री शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सो बाउंड्री कंडीशन सेम है, बी ए वाई। इसका मीनिंग क्या था, बाउंड्री एट ए, जो हमने पीछे लिखा था अल्फा 1 वाई ए प्लस अल्फा 2 वाई डैश ए इक्वल टू 0। और सेकंड बाउंड्री एट बी, जो सेकंड कंडीशन थी, अल्फा 2 वाई बी प्लस बीटा 2 वाई डैश बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो बाउंड्री एट बी, द आइगन वैल्यूज आर रियल। जब रियल प्रूफ करना है तो मैथ में क्या करते हो, उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ठीक है। अगर कॉन्जुगेट इक्वल आ जाए हम कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले व्हाट, सो वी कंसीडर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, तो बाउंड्री के साथ ही सेंस है इसका, ठीक है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन अकेली नहीं है, सो दिस इज एसएल प्रॉब्लम। If you write only differential equation, this is not SL problem, this is just a second order differential equation. So let
अब आइगन वैल्यू है तो आइगन वेक्टर भी होगा, सो दे कम इन पेयर। हमारा जो सोल्यूशन है, यानी कि लेट फाई एन एक्स बी ए सोल्यूशन, या y1 y2 लिख लें, तो फाई एन लिख लेते हैं। फाई एन हमने कल एग्जांपल किया था, फाई एन क्या आए थे, आइगन वैल्यू आ गई थी ना, एन स्क्वायर आ गया, 1 1 2 स्क्वायर, फिर साइन आया था ना, साइन साइन एन एक्स आया था, तो उसके अंदर एन था, तो सोल्यूशन को हम यूजुअली फाई एक्स लिखते हैं, तो क्योंकक्योंकि एन पे डिपेंड करता है तो फाई एन एक्स, ठीक है। यहाँ आप वाई एन लिखना, वाई एन लिख लो। लेट फाई एन एक्स बी ए सोल्यूशन ऑफ SL problem corresponding to eigenvalue lambda n। तो फिर बाय डेफिनेशन क्या होगा, देन L of phi n इक्वल टू लैम्डा आर एक्स फाई एन, सेटिस्फाई करेगा। y की जगह फाई एन लिख दो, ठीक है। सो what you want to show, all the eigenvalues are real, so we will show that, so lambda n equal to lambda n bar। So this is number 1। So take complex conjugate of equation first, उसी से लेना पड़ेगा ना, conjugate of equation first क्या बनेगा, देखो डिफरेंशियल ऑपरेटर रियल है, तो गिवन है ना, पता है ना, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पता है, इस पे तो बाहर नहीं आएगा। और सॉल्यूशन डिपेंड करेगा आगे, इस पे ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इक्वल टू लैम्डा, ये भी हो सकता है, आर एक्स रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, और बार को आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। जो गिवन है वो तो आपको पता है ना, वो तो रियल है। हाँ, सोल्यूशन और आइगन वैल्यू इनका हमें नहीं पता, सो उन पे आप बार लगा देंगे। अब फर्स्ट और सेकंड को थोड़ा हमने करना है, तो राइट हैंड साइड मतलब हमने सब इनको एलिमिनेट करना है, फिर हमने लैग्रांज आइडेंटिटी हमें पीछे पढ़ा है हमने, लैग्रांज आइडेंटिटी क्या कहती है, एल यू वी इक्वल टू यू एल वी, यानी कि ऑपरेटर चाहे पहले फंक्शन पे हो चाहे दूसरे पे हो, इट डजंट मैटर। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, पहली में एल फाई एन है, इसको फाई एन बार से मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरे में एल फाई एन बार है, इसको फाई एन से मल्टीप्लाई कर दो, देन सब्ट्रैक्ट। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट को फाई एन से, फाई एन बार से, और सेकंड को फाई एन से फिर सब्ट्रैक्ट, ये ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड, फाई एन इनमें ये कॉमन बन जाएगा, और फाई एन बार, ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा, और लैम्डा एन माइनस लैम्डा एन बार बच जाएगा। अब इंटीग्रल कर दो दोनों साइड को, ए और बी से, इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू बी, हाँ जी, गड़बड़ कर दी, इंटीग्रेट ए टू बी, सबके अंदर x फाई एन, दे ऑल आर फंक्शन ऑफ x, x तो सबके अंदर है, ठीक है, वो लिखा नहीं सर मैंने। फाइन भी तो माइनस होंगे ना, मल्टीप्लाई थोड़ी होंगे। dx इक्वल टू लैम्डा, तो नंबर है ना, इसको इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हो, ठीक है, r के अंदर x हो सकता है, देन dx।
आ जाएगा ऐसे। लेफ्ट हैंड साइड देखो, अप्लाई लैग्रांज आइडेंटिटी ऑन लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, कैसे? हाँ, अगर सेपरेट करोगे तो पहला क्या बनेगा, फाई एन बार का एल फाई एन इनर प्रोडक्ट ये बन जाएगा फर्स्ट वाली तरह। सेकंड टर्म क्या बनेगी, फाई एन इनर प्रोडक्ट फाई एन का किसके साथ, एल फाई एन बार के साथ। अब वो क्या कहती है, आप एल को स्वैप कर सकते हो विद दोज बाउंड्री कंडीशंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, उन कंडीशन के साथ ही, क्योंकि कंडीशन ने सिंप्लीफाई किया था लास्ट में बाउंड्री, तो कंडीशन हमारी सेम है। ठीक है, कंडीशन हमारी सेम है। सो वी यूज लैग्रांज, आप अप्लाई करना, मैं शॉर्ट में, वी अप्लाई लैग्रांज आइडेंटिटी to the left side with homogeneous boundary condition। अगर बाउंड्री कंडीशन चेंज करोगे फिर जरूरी नहीं है वैलिड रहे, विद दोज बाउंड्री कंडीशन। सो लेफ्ट हैंड साइड इज विल बी 0 और यहाँ पे Rx phi n। अब इसको आप ये भी लिख सकते हो, फाई बार को क्या लिख सकते हो, जेड बार क्या होता है, स्केयर। ठीक है, वेट फंक्शन नॉन जीरो होगा आर, अगर आर नॉन जीरो है तो फिर डायगोनल प्रॉब्लम आपकी है ही नहीं, आर लैम्डा के साथ आता है ना उधर, तो नॉन जीरो है, ये स्केयर है, लिमिट भी इक्वल नहीं है। आर आपका पॉजिटिव है ना, रेगुलर प्रॉब्लम के लिए आर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ए टू बी, बी ए से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर को इंटीग्रेट कर रहे हो तो जीरो तो नहीं आएगा ये, तो इसका मीनिंग क्या, ये जीरो होगा। इंटीग्रल कब जीरो कब होता है, डेफिनेट इंटीग्रल, या तो इंटीग्रेंट खुद जीरो हो या आपकी लिमिट सेम हो, ऐसा केस हमारे पास नहीं। सो लैम्डा एन इक्वल टू लैम्डा एन बार, दैट इज लैम्डा एन इज रियल। सो इनमें प्रूफ सारे सिमिलर ही हैं, तो इसी टाइप से अगर आपने किसी को कॉम्प्लेक्स रियल प्रूफ करना है तो उसका कॉन्जुगेट ले लो। ठीक है, देन अप्लाई लैग्रांज आइडेंटिटी। सो विद दीज बाउंड्री कंडीशन यू कैन अप्लाई लैग्रांज आइडेंटिटी। ये स्टेप क्लियर है सबके? ये आप सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, यूज लैग्रांज आइडेंटिटी LUV इक्वल टू V, उसका प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, विद दोज बाउंड्री कंडीशन वी विल यूज दैट रिजल्ट डायरेक्टली। तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, दिस विल बी, ये बनेगा L फाई n, और सेकंड क्या बनेगा, फाई n L फाई n, इक्वल हो जाएंगे। इनर प्रोडक्ट में सिमेट्रिक भी एक थी ना, आप वो भी लगा सकते हो, हैं इक्वल बन जाएंगे। कैसे? तो बनाओ इसको इक्वल, इक्वल होंगे तब जीरो बनेंगे। वाई दे आर इक्वल, वो तो ये तो नहीं कहती। तो एक तो चीज है, फर्स्ट पे लगा दो तो एल फाई एन पे चला गया, तो फिर वो फर्स्ट आर्गुमेंट पे, इस पे सेकंड पे है, तो फिर इक्वल कैसे हो गई? फर्स्ट पे लगाओगे तो क्या बनेगा, इसको नेक्स्ट पे लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या बन जाएगा, ये लग रहा है, पर फिर ये दोनों इक्वल थोड़ी है,
इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जो थी सिमेट्री वाली, आपस में स्वैप कर सकते हो, यू वी इक्वल टू वी यू। जब स्वैप करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी थी ना, सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, कर लोगे इसको? हाँ श्वेता, कर लेंगे? यस सर, आ गया। अच्छा, आवाज तो आने रही, अच्छी बात। यस ठीक सर। है, कर लोगे। सो नेक्स्ट रिजल्ट दैट यू विल राइट हियर नाउ। जो ये लोग बैठे हैं, प्रूफ करके दिखाओ मेरे को। अभी छोटा सा रिजल्ट है, दैट इज रिलेटेड टू आइगन फंक्शन। पहला आइगन वैल्यू रियल है और आइगन फंक्शन ऑर्थोगोनल है। द आइगन फंक्शंस corresponding to different eigenvalues for the SL problem, Ly equal to lambda r y with boundary condition are orthogonal। ऑर्थोगोनल कैसे होंगे? ऑर्थोगोनल की पहचान क्या थी? हैं? वहां आप डॉट प्रोडक्ट जीरो कहते थे, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, डॉट प्रोडक्ट जीरो, यहाँ पे इनर प्रोडक्ट जीरो हो। अब इनर प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होगा? यानी कि ए टू बी इंटीग्रल, आप दो डिफरेंट ले लो, एक फाई एन ले लो, एक फाई एम ले लो, तो इनर प्रोडक्ट क्या बनेगा उनका? जीरो बनेगा। इनर प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होगा? इंटीग्रल ही होगा, ए टू बी फाई एम डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो दो फंक्शन ले लो, लिखो, क्या लिखोगे? एक को फाई एन कह दो, एक को फाई एम कह दो। लेट फाई एन बी solution of let phi n be a solution of SL problem corresponding to eigenvalue lambda n। ठीक है, तो फिर होगा क्या? L of phi n इक्वल टू lambda n phi n। ठीक है, y की जगह phi n लिख दो। अगर नोटेशन में कंफ्यूजन हो रहा है, लेट अस राइट, यू कैन राइट वाई एन, तो यहाँ वाई एन भी लिख सकते हैं। सेकंड, फिर सपोज कर लेट फाई एम बी ए सोल्यूशन, सोल्यूशन यानी कि आइगन फंक्शन कह सकते हो ना उसको। सोल्यूशन को हमने आइगन फंक्शन में बोला था ना। लेट फाई एम बी एन आइगन फंक्शन corresponding to eigenvalue lambda m। So then by definition L of phi m equal to lambda m Rx phi of m। अब सेम प्रोसीजर है, सब्ट्रैक्ट करना है, एक साइड सिमिलर करके यूज लग रहा है आइडेंटिटी, जैसे पहले किया था। फर्स्ट एल फाई एन है, सेकंड एल फाई एम है, तो पहले को फाई एम से कर, फाई एम से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड को फाई एन से। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन with phi m and second with
पेपर में लिखना है पूरा, ठीक है? जो मैंने ऐसे लिखा था ये नहीं लिखना, ये गंदा वे लिखने का, ठीक है? सो डोंट राइट दिस। मैथ में हम अच्छा अच्छा साफ साफ लिखते हैं, ठीक है? सेकंड विद फाई एन एंड सबट्रैक्ट। कर दो कंप्लीट ऑफ प्रूफ, फिर इंटीग्रल कर देना है, लेफ्ट में लैग्रांज लगा देना है। इक्वल टू लैम्डा एन माइनस लैम्डा एम आर एक्स फाई एन। Integrate both sides from a to b and use Lagrange identity. Integrate both sides from a to b and use Lagrange identity. So we have left hand side will be 0, lambda n minus lambda m, a to b r phi n phi m. अब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, हमने शुरू में लिया है, ये तो दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है? डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, इसका मीनिंग क्या है? ए टू बी आर एक्स फाई एन एक्स phi mx dx, this integral is 0, और you can divide with lambda n minus lambda m, ठीक है? इक्वल टू 0 है ना, so this integral is 0। तो ऑर्थोगोनल है ये, हाँ, बट ये r है साथ में, तो इसको वेट फंक्शन बोलते हैं, ये रहेगा, ऐसा हो सकता है। सो स्टेटमेंट हम मॉडिफाई कर देंगे, सो हेंस phi n and phi m are orthogonal with weight function rx and usually this is 1। 90% प्रॉब्लम में 1 ही होता है, ये 1 है तो फिर ठीक है, इट्स ओके। नहीं है तो मतलब ये नेचुरली आ रहा है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। So with this weight function they are orthogonal। Any query है? असाइनमेंट कर ली थी? चल रही है? नेक्स्ट थ्योरम, the eigenvalues of a regular Sturm-Liouville problem, the eigenvalues of a regular are non-degenerate। That is a unique eigenfunction that is there is a that is there is a unique eigenfunction up to a constant। क्या मीनिंग हुआ स्टेटमेंट का?
eigenvalues are non-degenerate. That is, there is a unique eigenfunction up to a constant. क्या मीनिंग हुआ स्टेटमेंट में? क्या एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग दो आइगन फंक्शन हो सकते हैं? ये इसका आंसर देगा ये। आपके पास आइगन वैल्यू एक है लैम्डा, कैन यू हैव टू, यहाँ पर साइज दिए, कैन यू हैव टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन? ये कहता नहीं, दो एल आई नहीं हो सकते, एल डी हो सकते हैं। तो अप टू कांस्टेंट की, मान लो एक आप साइन एक्स कह दो, टू साइन एक्स भी ले सकते, कुछ भी आप ले सकते हो, मल्टीप्लियर उसका हो सकता है। यानी कि एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास दो डिफरेंट का मीनिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन आपके पास नहीं होंगे। ये हमने प्रूफ करना है। 3-4 लाइन का प्रूफ है, आप ट्राई देना इसको। करोगे? हैं? कैसे करोगे? सर एक बार रिपीट करना y1 स्टेटमेंट जो y2 आपने बताई है दो अभी। ले लो आइगन फंक्शन। उनको सुनाई नहीं दे रहा। जो भी आप लिखोगे L51 इक्वल टू लैम्डा आर एक्स, जो भी 51 लिखोगे सेकंड लिख लो, लैम्डा सेम रख लो दोनों में। फिर आप जैसे हमने अभी किया था, पहले को 5 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे को 5 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, जरूरत पड़े लगाने लगा लो। करोगे ट्राई? इसमें रॉन्स्कियन भी आएगा। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे इसका प्रूफ। We don't have class tomorrow. कर लोगे ना इसको प्रूफ? करके आना। चलो, आइगन वैल्यू ऑफ एसएल प्रॉब्लम आर नॉन डिजेनरेट। यानी कि अगर आपके पास एक आइगन वैल्यू है, यू कैन नॉट हैव टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, यानी कि दो डिफरेंट आइगन वेक्टर नहीं होंगे एक के कॉरस्पॉन्डिंग। तो आप ऑन द कॉन्ट्ररी लो, दो डिफरेंट ले लो आइगन वेक्टर, फिर आप शो कर दो लास्ट में कुछ है। ओके, सो वी विल कंटिन्यू टुमारो। अब ये कहते हैं हमारे भी डाउट लो, तुम्हारे डाउट कैसे लेंगे बताओ? मैं इनका ध्यान दूं, उनका ध्यान दूं? अच्छा, तो तुम लोगों ने कहा ही नहीं शुरू में कि वो